ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا تھا تو ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. یہ آیت اہل کتاب یہودیوں کی سرکشی اور ان کے معاہدوں کی خلاف ورزی کا ذکر کرتی ہے. جب نبی اکرم کی بعثت ہوئی تو یہود کے علماء اپنی کتاب تورات میں موجود بشارتوں کے مطابق نبی کو پہچان چکے تھے. تورات میں اللہ کے آخری نبی کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں، مگر ان کی حسد اور ضد نے انہیں حق کو قبول کرنے سے روک دیا. یہودیوں کا ایک گروہ جو کتاب تورات کا علم رکھنے والا تھا، بجائے ایمان لانے کے نبی کے پیغام کو جھٹلاتا رہا. اس انکار کو قرآن مجید نے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کے الفاظ سے واضح کیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو جان بوجھ کر پس پشت ڈال دیا. تاریخی پس منظر مدینہ کے یہودی علماء اپنی کتاب کی روشنی میں یہ توقع رکھتے تھے کہ نبی آخر الزماں ان کے قبیلے میں سے ہوں گے، لیکن جب نبی عرب قبیلے قریش میں پیدا ہوئے تو انہوں نے حسد کی بنا پر مخالفت شروع کر دی. یہ آیت ان کے علم رکھنے کے باوجود انکار اور سرکشی کو نمایاں کرتی ہے. ابن کثیر کے مطابق اس آیت میں یہود کی سرکشی اور بدعہدی کی نشاندہی کی گئی ہے. اللہ کے رسول نبی کی آمد کے بعد ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہا، کیونکہ نبی کی صفات ان کی کتاب تورات میں واضح طور پر موجود تھیں. لیکن ان کے کچھ علماء نے کتاب اللہ تورات کو ترک کر کے اپنے مفادات اور خواہشات کی پیروی کی، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی ناراضگی کے مستحق بنے. تفسیر القرطبی یہاں نبذہ کا لفظ بہت اہم ہے، جس کا مطلب ہے چھوڑ دینا یا رد کر دینا. یہودی علماء نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر اسے غیر اہم سمجھا اور اپنے علم کو چھپانے لگے. یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود اگر عمل نہ کیا جائے تو علم بے فائدہ ہو جاتا ہے. تفسیر مظہری. اللہ تعالی نے یہاں یہود کی دو بڑی خطاؤں کو بیان فرمایا. اللہ کے رسول کا انکار، کتاب اللہ تورات کو ترک کرنا اور پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حق کا انکار ایک بدترین اخلاقی بیماری ہے جو علم رکھنے کے باوجود بھی انسان کو گمراہی میں مبتلا کر سکتی ہے. اللہ کی حکمت. اللہ نے ہر قوم کو ہدایت کے لیے کتاب اور رسول بھیجے. یہود کے لیے تورات اور بعد میں تمام انسانیت کے لیے نبی کریم کو مبعوث فرمایا. اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے اور ان کے علم و عمل کا امتحان لیتا ہے. اللہ کی قدرت. اللہ نے قرآن مجید کو نازل کر کے سابقہ کتاب کی تصدیق کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی کتابوں کو محفوظ رکھا ہے. اللہ کی قدرت اس بات میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں کے بھید جانتا ہے. ہدایت کا اصول. جو لوگ اللہ کی کتاب کو ترک کر دیتے ہیں اور حق کو جھٹلاتے ہیں وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. رسول کی تصدیق. نبی کریم اللہ کی طرف سے آئے اور سابقہ کتابوں تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والے تھے. اہل کتاب کا رویہ. اہل کتاب یہودیوں کا ایک گروہ رسول کے واضح حق کے باوجود انکار کر رہا تھا. کتاب اللہ کو ترک کرنا. اہل کتاب نے اللہ کی کتاب تورات کو پس پشت ڈال دیا اور گویا لا علم بن گئے. علم کا امتحان. علم رکھنے کے باوجود حق کو نہ ماننا سب سے بڑی گمراہی ہے. اللہ کا عذاب. اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ضد اور تکبر کی بنا پر حق کا انکار کرتے ہیں. سبق آموز حقیقت. یہ آیت آج بھی ہمیں سبق دیتی ہے کہ علم کو ترک کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا انسان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے.
उस्ताद और तालिब इल्म की मिसाल फ़र्ज करें। एक उस्ताद अपने तलबा को नसीहत करता है कि इम्तिहान में कामयाब होने के लिए वो किताब में दर्ज सवालात को अच्छी तरह पढ़ें और इन पर अमल करें। कुछ तालिब इल्म नसीहत पर अमल करते हैं और किताब को गौर से पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे तालिब इल्म उस्ताद की नसीहत को नज़रअंदाज करके किताब को एक तरफ रख देते हैं और उसे पढ़ने की ज़हमत तक नहीं करते। इस मिसाल का ताल्लुक़ आयत से। यहूदी उलमा ने भी ऐसा ही किया। अल्लाह ने उनके लिए किताब तौरात नाजिल की, मगर उन्होंने उसे नज़रअंदाज करके अपनी ज़िद और ख्वाहिशात को अख्तियार कर लिया। 2. डॉक्टर की हिदायत की मिसाल। एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे इलाज के लिए एक मखसूस दवा और परहेज़ की हिदायत देता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि अगर वो दवा लेगा और हिदायत पर अमल करेगा तो सेहत याब हो जाएगा, लेकिन मरीज़ दवा को लेकर एक तरफ रख देता है और डॉक्टर की बातों को नज़रअंदाज करता है। नतीजा ये होता है कि उसकी बीमारी बढ़ जाती है और वो मज़ीद नुकसान उठाता है। इस मिसाल का ताल्लुक़ आयत से। अल्लाह ने इंसानों की हदायत के लिए अपनी किताब कुरान मजीद और अपने रसूल को भेजा ताकि लोग हक़ पर चलें, लेकिन जो लोग हिदायत को नज़रअंदाज करते हैं वो अपनी ज़िद और नाफरमानी की वजह से नुकसान उठाते हैं। 3. रास्ते के निशान और मुसाफिर की मिसाल। तसव्वुर करें कि एक शख्स किसी जंगल या पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहा है। रास्ते में बहुत से रहनुमाई के निशान और नक्शे लगे हुए हैं जो सही रास्ता है बताते हैं। एक समझदार मुसाफिर उन निशानात की पैरवी करके सही रास्ते पर पहुंच जाता है, जबकि दूसरा मुसाफिर उन निशानात को नज़रअंदाज करके अपनी मर्जी से गलत रास्ते पर है चलने लगता है। आखिरकार वो रास्ता भटक जाता है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इस मिसाल का ताल्लुक़ आयत से। अल्लाह के रसूल और किताब कुरान और तौरात इंसानों के लिए हिदायत का रास्ता हैं। जो लोग उनकी रहनुमाई को कबूल करते हैं वो कामयाब होते हैं, लेकिन जो लोग हक़ को जानने के बावजूद उसे छोड़ देते हैं वो गमराह हो जाते हैं। खलासा। उस्ताद और तालिब इल्म। नसीहत को रद्द करने से इल्म का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर और मरीज़ इलाज की हदायत को नज़रअंदाज करने से नुकसान होता है। रहनुमाई के निशान और मुसाफिर। सही हदायत को छोड़ने से इंसान गमराही में मुब्तला हो जाता है। ये मिसालें हमें सिखाती हैं कि हक़ और हदायत, किताब अल्लाह और नबी की तालीमात को रद्द करना अपने लिए ही नुकसानदेह साबित होता है। ये आयत आज भी हमारे लिए नहायत अहमियत रखती है, क्योंकि अल्लाह ताली ने इंसानों को हदायत के लिए कुरान मजीद और नबी की तालीमात दी हैं। मगर आज भी बहुत से हैं लोग इन तालीमात को नज़रअंदाज करके दुनियावी ख्वाहिशात, अपनी ज़द और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। मिसाल 1, आजकल लोग कुरान मजीद को महज एक मुक़द्दस किताब समझकर ताक पर रख देते हैं और उसकी तालीमात पर अमल नहीं करते। मिसाल 2, बाज़ लोग जानते बूझते हुए भी झूठ, रिश्वत, धोखाधड़ी और गुनाह में मुब्तला होते हैं। मिसाल 3, जदीद दौर में बाज़ लोग हिदायत के बजाय सोशल मीडिया या गलत नज़रियात को तरजीह देते हैं, गोया वो हिदायत को पीछे फेंक देते हैं। नतीजा, ये आयत हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की किताब कुरान पर अमल करना ही असल हिदायत है। अगर हम भी अहले किताब की तरह इस किताब को नज़रअंदाज करेंगे तो हम भी गमराही का शिकार हो जाएंगे। इल्म पर अमल ज़रूरी है। सिर्फ इल्म हासिल करना काफ़ी नहीं, बल्कि उस पर अमल भी लाजिम है। अल्लाह की किताब को समझकर इस पर अमल करना हकीकी कामयाबी है। हक़ को रद्द करना तबाही है, लाता है। जो लोग हदायत को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं वो गमराही में मुब्तला हो जाते हैं और अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहक़ बन सकते हैं। अल्लाह की किताब की कदर करें। कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से हदायत है। इस पर अमल करना और इसकी तालीमात को अपनाना हमारा फ़र्ज़ है। ज़िद और तकब्बर से बचें। अहले किताब की तरह ज़िद, तकब्बर और हसद से हक़ को झटलाने की कोशिश न करें, बल्कि आजिज़ी के साथ अल्लाह की हिदायत कबूल करें। हक़ को पहचानना। आज की ज़िंदगी में कुरान और संत ही वो मय्यार हैं जो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करते हैं। ए अल्लाह, हमें वो इल्म अता फरमा जो हमारे लिए नफ़र बख्श हो और हमें अपनी किताब कुरान मजीद को समझने,
उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। ए रब करीम, हमें इन लोगों में शामिल न फरमा जो तेरी हदायत को स्पष्ट डाल देते हैं। आमीन। आए अल्लाह, हमें अपनी हदायत पर चलने वाला बना दे। हमारे दिलों को हदायत के बाद न फेरना और हमें ऐसे अमाल से बचा जो हमें तेरी नाराज़गी की तरफ ले जाएं। आए रबिल आलमीन, हमें कुरान मजीद की तालीमात पर सच्चाई के साथ अमल करने वाला बना दे। आमीन। आए मेरे परवरदिगार, हमें हसद, तकबर और ज़द से बचा ले जो हक़ को कबूल करने में रकावट बन जाते हैं। आए अल्लाह, हमारे दिलों को नर्म फरमा और हमें आजिज़ी, तक़वी और नबी करीम की संत पर चलने वाला बना दे। हम तुझसे तेरी रिज़ा और हदायत मांगते हैं। आमीन।